जिनकी फैमिली हिस्ट्री है गॉल ब्लैडर कैलकुलस की, उनको अपने डाइट में बाजरा जरूर इंक्लूड करना चाहिए। बाजरा रिड्यूसेस द एस्थमेटिक अटैक इन एस्थमा पेशेंट। तो जिन लोगों को थायराइड ग्लैंड की कोई भी प्रॉब्लम है उन्हें बाजरा अवॉइड करना चाहिए या बहुत ही मिनिमल अमाउंट्स में यूज करना चाहिए। तो हमें विंटर्स में डेफिनेटली बाजरा को यूज करना चाहिए। सो जिन लोगों को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है उन्हें बाजरा अवॉइड करना चाहिए। Hello everyone, you are watching Arogyam Nutrition and this is Dr. Gushneet Madan. In today's video, we are going to talk about one of the major millets which is widely used for its nutritional health benefits around the globe. That is pearl millet or bajra. Pearl millet is most important cereal after wheat and rice in India. It is nutritionally superior to other fine grains such as rice, as it provides special health benefits such as high fiber, minerals, slow digestibility, well suited to diabetes prone Indian population. The major pearl millet growing states in India are Rajasthan, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh and Maharashtra. Bajra is so much enriched with nutrients that the people who can't afford different varieties of foods in their diet, they can meet their nutritional requirements easily by just including bajra in their diet. So it's known as poor people's staple food. But that doesn't mean कि अगर हम different varieties of foods afford कर सकते हैं तो हम बाजरा को ignore करें. So let us check its nutritional health benefits. Bajra is a good source of energy. It provides proteins, fatty acids, vitamins, minerals, dietary fiber and polyphenols. Typical millet protein contains a higher quantity of essential amino acids, especially sulfur-containing amino acids, methionine and cysteine. Bajra is one of the best plant-based protein source. Bajra, when combined with legumes such as rajma, lobia, moong, urad, then it becomes a complete vegetarian protein meal. अगर हम बाजरा की एक रोटी का व्हीट की एक रोटी के साथ कंपैरिजन करें तो बाजरा की रोटी कंटेन्स 116 कैलोरीज, 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड व्हीट की एक रोटी में 80 कैलोरीज एंड 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। तो बाजरा में अब कैलोरी काउंट तो ऑलमोस्ट व्हीट से डबल है, बट स्टिल एज इट इज लोडेड विद फाइबर एंड इसका प्रोटीन का अमाउंट भी डबल है, तो बाजरा की रोटी हमें लॉन्ग टाइम तक फिलिंग देने वाली है। पर्ल मिलेट के एक ग्रेन के न्यूट्रिशन कंटेंट की बात करें तो इट कंटेन्स प्रोटीन अप टू द लेवल ऑफ 11.2%, carbohydrate 67.5% and fat 5% and fiber 1.2% and higher qualities of vitamins and minerals much more than other cereals. Pearl millet contains higher amounts of iron, zinc, magnesium, vitamin B1, omega-3 fatty acid and carotenoids. Bajra is rich in phenolic compounds such as flavonoids and lignans. They act as strong antioxidants. They prevent heart-related diseases. Bajra is rich in magnesium. Magnesium reduces blood pressure and relieves stress. Even magnesium is good for muscles and nerves in our body. It is good for heart muscle also. Bajra contains a phytochemical named phytic acid, which increases cholesterol metabolism in our body. It increases HDL and lowers LDL in our blood. Being gluten-free, like other millets, bajra is a good choice for people with celiac disease. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण बाजरा हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करके रखता है, सो इट इज अ गुड फूड फॉर पीपल विद डायबिटीज। हाई फाइबर होने के कारण बाजरा टेक्स लोंगर टाइम in passing from stomach to intestine, so it gives us satiety for much longer time. So it is good for weight loss also. Weight loss में हम thermogenic foods prefer करते हैं and बाजरा itself thermogenic food की कैटेगरी में आता है। थर्मोजेनिक फूड्स के जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हायर साइड पे रखते हैं।
इनके अंदर का जो हाई फैट एंड प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है एंड नॉर्मली हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट हायर साइड पे रहता है। सो बाजरा हेल्प्स इन वेट लॉस। जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो उससे स्टमक का एसिडिटी लेवल काफी बढ़ जाता है, जो कई बार अल्सर्स का रीजन बनता है। एंड बाजरा इज वन ऑफ द फ्यू फूड्स that turns stomach alkaline. It reduces the risk of peptic ulcers. Insoluble fiber present in bajra reduces the excess production of bile juice, जिससे गॉल ब्लैडर स्टोन्स या गॉल ब्लैडर कैलकुलाई होने का रिस्क कम रहता है। तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री है गॉल ब्लैडर कैलकुलस की, उनको अपने डाइट में बाजरा जरूर इंक्लूड करना चाहिए। बाजरा का इनसॉल्युबल फाइबर हमारे गट फ्लोरा के लिए प्रीबायोटिक का काम करता है एंड हमारी गट हेल्थ को अच्छा बना के रखता है। फॉस्फोरस रिच होने के कारण बाजरा बोन ग्रोथ एंड बोन डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है। सो इट विल बी ए गुड फूड फॉर टीनेजर्स ऑल्सो। फ्लेवोनॉइड्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होने के कारण इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स इन आवर बॉडी। Antioxidant present in bajra reduces inflammation in our body and it will definitely be helpful in arthritis patient. Bajra reduces the asthmatic attack in asthma patient and it is especially good for childhood asthma. तो अब बच्चों में बाजरा कितना सेफ है? 8 महीने की एज से ऊपर के बच्चों में हम बहुत कम अमाउंट में बाजरा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट फिर भी आप अपने पीडियाट्रिशियन से पहले कंसल्ट करें। जब बहुत ठंड होती है तो हम टी या कॉफी पीते हैं। दे विल डेफिनेटली गिव एन इंस्टेंट हाई, बट साथ के साथ वो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट भी करते हैं और जो भी मील टी या कॉफी के साथ लिया जाता है उसके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाती। बाजरा हमें यूज करना चाहिए ठंड से बचने के लिए, क्योंकि बाजरा इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है एंड हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। बाजरा के ग्रेन की हार्वेस्टिंग विंटर्स में होती है और इस टाइम पे बाजरा के ग्रेन में पीक न्यूट्रिशन होता है। सो हमें विंटर्स में डेफिनेटली बाजरा को यूज करना चाहिए। अगर हम बाजरा की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें तृणधान्य के अंडर कैटेगराइज करा गया है और इसमें मधुर रस है, लघु एंड रूक्ष इसके गुण हैं, उष्ण वीर्य है एंड कटु विपाक होता है। राजस्थान एंड हरियाणा में थ्रू आउट समर्स बाजरा की खट्टी राब यूज होती है, जो बाजरा के फ्लोर को बटर मिल्क के साथ फर्मेंट करके बनाई जाती है। बाजरा पित्त शामक है एंड वात एंड कफ को भी बैलेंस करता है। कंबुखूज नाम से बाजरा का फर्मेंटेड दलिया तमिल में समझ में यूज होता है। अगर बाजरा आपका रेगुलर फूड है तो आप उसे एज सच कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इफ यू आर न्यू टू बाजरा तो आपको इसे वीक में 2 से 3 मील्स में इंक्लूड करना चाहिए। मिलेट्स को कभी मिक्स ना करें, एक दिन में सिर्फ एक ही मिलेट यूज करें। बाजरा बहुत सारी फॉर्म्स में अवेलेबल है। होल बाजरा मिल जाता है तो आप उसको स्प्राउट करके यूज कर सकते हैं। हस्क रिमूव करके बाजरा की खिचड़ी बना के यूज कर सकते हैं। बाजरा का फ्लोर अवेलेबल है, दलिया अवेलेबल है, तो बाजरा की रोटी बना के यूज कर सकते हैं। उसको फर्मेंट करके उसका डोसा, इडली बना सकते हैं। बाजरा का सूप बना सकते हैं। इवन स्मूदीज की फॉर्म में भी बाजरा को यूज किया जा रहा है। बाजरा रोस्टेड, बेक्ड या फ्लेक्स की फॉर्म्स में भी मार्केट में अवेलेबल है, बट आप पहले उसके पैकेट के इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करें। अगर उसमें पाम ऑयल, एडेड शुगर एंड सॉल्ट का अमाउंट है तो आप उसे अवॉइड करें एंड बाजरा नेचुरल फॉर्म में ही यूज करें। देयर आर एविडेंसेस दैट पॉल मिलेट कंटेन goitrogens and can hamper iodine uptake by the body, which is very essential for thyroid gland functioning. तो जिन लोगों को थायराइड ग्लैंड की कोई भी प्रॉब्लम है उन्हें बाजरा अवॉइड करना चाहिए या बहुत ही मिनिमल अमाउंट्स में यूज करना चाहिए। बाजरा इज रिच इन ऑक्सलेट्स ऑल्सो। सो जिन लोगों को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है उन्हें बाजरा अवॉइड करना चाहिए। इट्स अ फैक्ट दैट बाजरा हैज न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, बट ईटिंग ओनली बाजरा will not give us complete health and fitness. To stay healthy, हमें
एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है जिसमें वैरायटी ऑफ होल ग्रेन्स, सीजनल वेजिटेबल्स, लोकल फ्रूट्स, लेग्यूम्स, पल्सेस सब कुछ आए और हमें साथ साथ रेगुलर एक मॉडरेट अमाउंट की फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है टू स्टे हेल्दी एंड डिसीज फ्री. So drop your queries in comment section and thank you very much.